Good evening, everyone. How are you all? Hope everyone is going happy. So, in the previous class, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ଉପରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ତୃତୀୟ ପାଠଟା ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 1936। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତାର ଗଢ଼ା ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ତ 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଲା ତା ପଛରେ କେତେ କାହାଣୀ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେରି କରିବାନି, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କହିବ ତାହାର ପୂର୍ବ 100 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ନେବେ। ଊନବିଂଶ କହିଲେ 19 ହେଲା, 19। ତ ଊନବିଂଶ ମାନେ 19 यानी कि 1801 ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ଆମେ ନେବା 1900 ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ, ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ କହିଲେ କୌଣସି ରାଜା ରହିଲେ, ରାଜା ଇଂରେଜମାନେ ହେଲେ ମାନିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ, ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଠି ଗଡ଼ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଂରେଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଅଧିକାର କଲେ? 1759ରେ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଅଧିକାର କଲେ କେବେ ଇଂରେଜମାନେ? 1759ରେ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଞ୍ଜାମ ବି ଚାହିଁଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେଇଟା କହିବା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଥିଲା 1759ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କଲେ ଗଞ୍ଜାମକୁ, ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 1759। 1849 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଥିଲା, ମନେ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ତ 1849 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 1849 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ କଥା। 1759 ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ 100 ବର୍ଷର ତଫାତ। 1849ରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ସେ କହିଲେ କି ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ବଳରେ ମାନେ ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜା କିଛି ଇଏ କରିପାରିବେନି, ସବୁ ଏବେ ଇଂରେଜମାନେ କାମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାସନ ଫାସନ ସବୁ। ତ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, 1849ରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅଧିକାର କଲେ। କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା? ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅଧିକାର କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲେ, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡରକୁ ଏବେ ଆସିଗଲା ସମ୍ବଲପୁର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମେଦିନପୁର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶିଥିଲା। ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ କେଉଁଠି ମିଳିଥିଲେ? ମେଦିନପୁର କେଉଁଠି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଲା। ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଦିନପୁରର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶିଗଲେ। ଏବଂ ସିଂଭୂମି ବିହାରର ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସିଂଭୂମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଂଭୂମ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିହାରର ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନରେ ମିଶିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ମାନେ ଯଦି କହିବା 1850 ହେଲା, 50ର ପର ଯେଉଁ ମାନେ ଇୟର ଗୁଡ଼ା, ତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ା। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ, ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା କି ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଜନନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ
आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पाई ही आरंभ करथिले ହେଲା ओडिया भाषा को बंचेकी रखिबा 1849 मसीहारे जेतेबेले कटक रे तत्कालीन कलेक्टर कौन कले से समय कटक रे जे कलेक्टर थांती 1849 मसीहारे देखंतु ए 1849 मसीहा जेबे संबलपुर रे माने को अधिकार करिके केंद्रीय प्रदेश बा सेंट्रल प्रोविंस रो अंडर को निया गला तो सेही समय रे 1849 रे कोन थांती ओडिया जातीयतार जन 1849 रे कटक रे सेतेबेले जे कलेक्टर थिले से कोन कले सरकारी भाषा कहिले कोन हबो बंगला भाषा अच्छा बंगला भाषा है ओडिया जिते प्रदान कले तो ओडिया कौन कला एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली कि बंगलार विशिष्ट ऐतिहासिक राजेंद्रनाल मित्र और अन्य माने मत प्रकाश कले मान भावंतु से समय बंगलार जो विशिष्ट माने हिस्टोरियन थिले बा ऐतिहासिक थिले तांको नाम थिला राजेंद्रनाल मित्र सीए कौन कहिले ए देखंतु राजेंद्रनाल मित्र तो राजेंद्रलाल मित्र कौन कहले कि ओडिया भाषा आउ किछि जन लोक ओडिया भाषा तो गोटे भाषा स्वतंत्र भाषा ही नुहे आउ 1849 रे भी कौन कले बंगर जे कटक रे जे तत्कालीन कलेक्टर सी भी कौन कले बंगला भाषा हम सरकारी भाषा बुझी पार्छ नै किंतु जो विख्यात भाषाविद थिले जॉन बीम्स भल से मन बीम्स जॉन बीम्स ओडिसा रो गवर्नर थिले सेतबेले गोल्ड सबरी गोल्ड सबरी आ बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय ए प्रकार मत को ग्रहण करनथिले माने जेतेबेले ऐतिहासिक राजेंद्रनाल मित्र कहले कि ओडिया तो एक स्वतंत्र भाषा ही नुहे किंतु सेतेबेले भी हमको सपोर्ट करला बेला लोक थिले जेमति कि विख्यात भाषाविद जॉन बीम्स ओडिशार गवर्नर गोल्ड्सबरी बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय से देखो बंगर लोक होगी भी से हमको सपोर्ट कर तो राजेंद्रनाल मित्र जो मना कहले कि ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा नुह यही 3 जन किए जॉन बीम्स जो विख्यात भाषाविद ओडिशार गवर्नर गोल्ड्सबरी आउ बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को कौन करथिले ग्रहण करनथिले हैला ओडिशा रे विभिन्न अंचल रे ओडिया भाषा प्रति अनुरक्त विद्वान माने ही मत को खंडन ऑब्वियसली जो माने भी आमर भाषाभाषी लोक थिले जो माने विद्वान माने थिले जेतेले कहले ओडिया गोटे भाषा नुहे से माने ऑब्वियसली से माने कोन कहले ना ये तो कथा नहीं परियो नहीं तो ओडिया भाषा स्वतंत्र स्थिति विषय रे उत्कल सभा संगठन मन पकांत उत्कल सभा फास्ट होइतला उत्कल सभा रु आसिला सम्मेलनी उत्कल सभा संगठन माध्यम रे कोन कला विभिन्न खबर कागज आनगला कोन उत्कल सभा माध्यम रे खबर कागज आसिला जेमति कि उत्कल दीपिका संवाद वाहिका उत्कल दर्पण मन रहा 3टा उत्कल रे 2टा ना उत्कल सभा रु आसिला संगठन माध्यम रे 3टा खबर कागज कौन उत्कल दीपिका उत्कल दर्पण आउ संवाद वाहिका मन रहा अच्छा व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति आउ कविवर राधानाथ राय भी कौन कले ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र विरोध करथिले जी भी ओडिया भाषा रो एगेंस्ट कहथिले ताको विरोध करिके व्यासकवि फकीर मोहन और कविवर राधानाथ राय कहते गंजाम अंचल गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा गंजाम अंचल कौन होता गोटे संगठन गढ़ी कौन गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा अच्छा गंजाम गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा गढ़िला ए संगठन माध्यम कौन करागला गंजाम अंचल को मद्रास प्रेसिडेंसी अधीन रु ओडिशा सहित मिसाई दाबी मन पकातु गंजाम को कौन कर मद्रास सहित मिसई दि जाता ना तो मद्रास प्रेसिडेंसी रु बाहर करिकी गंजाम अंचल केबे मिसिथिला मन पकातु 1768 फास्ट कहिक आसली ऊपर हाँ तो जितेबाला गंजाम रे गढ़ी उठला गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा से संगठन रे कौन कहगला कि गंजाम को मद्रास रु बाहर करके ओडिशा रे मिसा जाऊ हला अच्छा 1888 आसिला तापरे 1888 रे कौन है बंगर लेफ्टिनेंट सेतेबेले थांती गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर सार एस.सी. बेली किए थांती बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एस.सी. बेली सीए कौन करथिले ओडिशा को बुलिबा आसले आ सेतेबेले कटक रे कौन थे उत्कल सभा पक्षर गोटे तांको स्मारक पत्र दिया जायतिला कौन कुआ जायतिला कि केंद्रीय प्रदेश मांद्राज आ बंगरे मिसेथिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल को अलग करा जाऊ कौन कुआ जायतिला माने जहाँ जहाँ सब ओडिया भाषा रे लोक माने मिसी जायचंती ना ताकू सब अलग करा जाऊ आ कौन ओडिशा सहित मिसु माने रहिला ताले बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सार एस.सी. बेली केबे आसले ओडिशा भ्रमण रे 1888 रे आ जेतोले आसीथिले तांको कौन करा जायतिला कटक रो उत्कल सभा पक्षर गोटे स्मारक पत्र दिया जायतिला आ कौन करा जायतिला केंद्रीय प्रदेश मांद्राज और बंगरे जो मिसिची ओडिया भाषाभाषी अंचल ताकू अलग करा जाऊ किंतु बेली कौन गले सार एस बेली ताकू प्रत्याख्यान करथिले जोटा कि सेमाने कौन भाबिथिले ओडिया माने ना ई सुनिबे किंतु किछि सुन नथिले ठीक अच्छे 1895 जनवरी 15 रे कौन है केंद्रीय प्रदेश मुख्य कमिशनर किए केंद्रीय प्रदेश मुख्य कमिशनर किए थिले सार एंड्रू फ्रेजर जी थिले किए थिले तांको ना कौन सार एंड्रू फ्रेजर तो 1895 जनवरी 15 रे
केंद्रीय प्रदेश जो मुख्य कमिशनर थे सार आंड्रू फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी मानकर ओडिया भाषा उच्छेद करके कौन कले हिंदी भाषा भावतु माने संबलपुर से क्या केंद्रीय प्रदेश अंडर थिला ना तो केंद्रीय प्रदेश जी हेड थे कमिशनर थे सी सार आंड्रू फ्रेजर सी कौन कले संबलपुर कोर्ट कचेरी एवं ओडिया भाषा चलनी सी कौन कले हिंदी भाषा चलो है केबे कले 1895 जनवरी 15 से समय नीलमणि विद्यारत्न संपादन प्रकाशित होता गोटे पत्रिका संबलपुर हितैषिणी मन रहा संबलपुर किए थे नीलमणि विद्यारत्न आ सी गोटे संवाद पत्रिका रचना करते जोटा कि संबलपुर हितैषिणी आ संबलपुर हितैषिणी रे जो सर आंड्रू फ्रेजर जो हिंदी को राजभाषा करते संबलपुर माने जो कोर्ट कचेरी भाषा ताकू संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार समालोचना करा किए लिखी नीलमणि विद्यारत्न ठीक अच्छे एथपाई स्वभाव कवि गंगाधर नीलमणि को साधुवाद भी जन ऑब्वियसली गंगाधर मेहर भी चाहूले ना समस्ते चाहूले ओडिया भाषा जीवित रहू है से गंगाधर मेहर कौन करते नीलमणि विद्यारत्न को साधुवाद जन सहित संबलपुर अंचल धरणीधर मिश्र मदन मोहन मिश्र ब्रजमोहन पट्टनायक बलभद्र सुपकार प्रभृति सचेतन नागरिक माने भी ओडिया देखो सबू आपण को मन रखिबार नहीं है तथापि भी बार बार पढ़ले आम लिखिदेवा तो पढ़ी जाइए किसी लोकंर ना लिखा जो मैंने ओडिया भाषा भाषी माने कौन ये को चाहते लिखिपर आम धरणीधर मिश्र मदन मोहन मिश्र ब्रजमोहन पट्टनायक बलभद्र सुपकार बुझीपार नहीं अच्छा तापर 1901 मसीहा अगस्ट मसरे सिमला ठारे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने गोटे मर्मरे यही मर्मरे कौन कले स्मारक पत्र प्रदान करते कौन कहते जिते ये है सब घटना हिंदी है तो 1901 रे अगस्ट मसरे कौन कले सिमला ठारे कौन होता हिमाचल प्रदेश सिमला लॉर्ड कर्जन से था कौन करागला संबलपुर किसी नेता माने कौन करते गोटे स्मारक पत्र देले ये दाबी गुड़िक विचार करने को कौन कले लॉर्ड कर्जन कले ठीक अच्छे कथबार्ता करवा देखा आ पदक्षेप स्वरूप कौन कला आंड्रू फ्रेजर को पत्र प्रदान कले आंड्रू फ्रेजर किए कहते तो आंड्रू फ्रेजर पढ़ी के आसले अच्छा आंड्रू फ्रेजर को पत्र प्रदान कले मधुसूदन दास ये जोटा भी पढ़ी आसिले आम है आंड्रू फ्रेजर को पत्र माने कि जो आंड्रू फ्रेजर थे सी हिंदी ये करते ना तो पत्र देवा में भी चेंज करने अच्छा आंड्रू फ्रेजर मधुसूदन दास सिमला ठारे भारतर बड़लाट किए था लॉर्ड कर्जन भी कहली जोटा भारतर बड़लाट लॉर्ड कर्जन को साक्षात कले परिचय विहीन ओडिया जातिर माने सेतेबेले ओडिया जातिर किसी परिचय ही नथिला समस्या को अत्यंत माने दुखरे मार्मिक भाव से बुझेइथिले मधुबाबू लॉर्ड कर्जन को कौन कले आपण ओडिशा आसंतु आसिक देखंतु कर्जन बाबू कौन होइछि नै तो मधुबाबू अनुरोध करें लॉर्ड कर्जन ओडिशा आसिले गस्त को बुलिले बहुत जगह विभिन्न कला स्थापत्य एते सुंदर ओडिशा रे सब देखिकी सी कौन हो गले खुशी हो गले है मुग्ध हो गले आउ कौन कहले से कहले ना ओडिशा पाई तो किसी करने को ही पड़ो से 1903 जनवरी 1 रे कौन कले संबलपुर कोर्ट कचेरी ओडिया भाषा पुणी प्रचलित है यह थिला ओडिया आंदोलन प्रथम विजय मन रहा ओडिया आंदोलन प्रथम विजय लिखिपारे अच्छा अच्छा मन रहा 1903 जनवरी 1 डिसेम्बर 1903 पुणे लास्ट को जीवा 1903 डिसेम्बर 3 रे कौन है भारत सरकार को घर सचिव से था हेनरी डिस्ले जोटा आम पढ़ी डिस्ले सर्कुलर पूर्व चैप्टर रे 1903 डिसेम्बर 3 रे डिस्ले सर्कुलर आसीथिला केंद्रीय प्रदेश सरकार यही सर्कुलर को मानिथिले माने केंद्रीय प्रदेश जो सरकार थिला एहा द्वारा कौन है डिस्ले सर्कुलर जोगु 1905 जुलाई 19 तारीख रे केंद्रीय प्रदेश कौन है संबलपुर सहित पाटना कलाहांडी सोनपुर बामंडा और रेढ़ाखोल संबलपुर हाँ आउ छोटनागपुर गांगपुर बणई आसिकी ओडिशा डिवीजन सहित मिसिला यह थिला ओडिया प्रदेश गठन दिगरे प्रथम सफलता बुझीपारा तो ओडिया भाषा आंदोलन प्रथम विजय थिला जिते 1903 रे लॉर्ड कर्जन को द्वारा माने कौन है कि संबलपुर कोर्ट कचेरी पुणी हिंदी छाड़ी ओडिया भाषा है तापर 1903 रे डिसेम्बर 3 रे जिते हेनरी सर्कुलर डिस्ले सर्कुलर आसी तो कौन है सेठी कौन करागला केंद्रीय सरकार इस सर्कुलर को मानिले एदरे है कौन 1905 जुलाई 19 रे केंद्रीय प्रदेश रु कौन गुड़ा आसिला संबलपुर सहित पाटना कलाहांडी सोनपुर और बामंडा और रेढ़ाखोल और छोटनागपुर गांगपुर और बणई आसिक ओडिशा सब डिविजन में मिसीगला ओडिशा डिविजन में मिसिला यह ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे प्रथम सफलता तापर 1904 आसला 1904 जनवरी 5 तारीख रे लॉर्ड कर्जन कौन कले माद्राज गवर्नर को कौन कहले ओडिशा सहित दक्षिण रे थिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल को मिसवा पाई की पत्र देले कौन कहले 1905 तापर देखंतु 1904 जनवरी 5 रे लॉर्ड कर्जन तो ओडिशा प्रति टिके बेसी भल पाई जाइछंती ना तो लॉर्ड कर्जन कौन कले माद्राज गवर्नर को कहले कि
जो ओडिशा सहित कौन कर जो दक्षिण में जो ओडिशा लोक मैंने रोना भाषाभाषी अंचल सब ओडिशा मिसई दियो। अच्छा किंतु मांद्राज गवर्नर थिले किए लॉर्ड आमथिल सी कहले ना ये तो हो पारिबनी। लॉर्ड कर्जन जिते कहले किंतु मांद्राज गवर्नर से किए था लॉर्ड आमथिल कौन कहले ना एटा हो पारिबनी ओडिशा सहित मिसी पारिबनी ओडिशा जो दक्षिण में ओडिया भाषाभाषी अंचल। तापर कौन है 1904 जून 20 मांद्राज मुख्य सचिव सी था एम हामरिक भारत सरकार को लिखिले कौन कि मांद्राज प्रेसिडेंसी रे विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जोगु केवल ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण एक भौगोलिक परिसर में बास करथिबा विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य गभीर समस्या मान सृष्टि करिवो। तेणु गंजाम अंचल पूर्व परि मांद्राज अधीन रे रहिला। माने बुझी पारल ना कौन है माने 1904 रे कौन है जून 21 रे मांद्राज रे जे मुख्य माने सचिव थिले शासन सचिव मन पकान माने मु कौन कहले देखो कर्जन कौन कहले कि जो दक्षिण रे जो ओडिया भाषाभाषी अंचल रोचे ओडिशा रे मिसई देवाई मांद्राज गवर्नर को लिखिले किंतु मांद्राज गवर्नर से था लॉर्ड आमथिल सी मना कले। 1904 जून 20 कौन है मांद्राज जो मुख्य शासन सचिव थे किए एम हामरिक सी भारत सरकार को लिखिले माने तुम कह कि लॉर्ड कर्जन को लिखिले कौन कि मांद्राज प्रेसिडेंसी रे विभिन्न जाति मान लोक रोचंती खाली ओडिया भाषाभाषी को जब आम मिसई देवा तो सेटा गोटे प्रोब्लेम हो तो विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य देख जो ओडिया मानू ओडिशा रे मिसई देवा कथा मांद्राज अंचल जो ओडिया मानू जब आम ओडिशा रे मिसई देवा सेठी अलग बाला लोक भीतर रोचंती ना से कहे आमर पुणी गोटे किसी कर। तेणु गंजाम अंचल जो थिला पूर्व पड़ी जमती मांद्राज अंडल रे थिला पूर्वरु पुणी मांद्राज अंडल रे माने अंडर रे बा अंचल पड़ी अंचल अंडर रे रहिला। ठीक अच्छे पूर्णांग ओडिशा स्वप्न को साकार करने ओडिया उत्कल सम्मेलन तार आंदोलनात्मक कार्य को जारी रखिला। मधुबाबू 1907 रे इंग्लैंड गले। इंग्लैंड जाइए कौन कले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने भारतर शासन जो भारत शासन सहित संपृक्त जिते सब कर्मकर्ता थिले तांको सब बुझेले प्रवर्तेले। बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव मधुबाबू ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पर दाबी उपस्थापन करते पड़ी बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव किए ओडिशा थिले से थिले मधुबाबू बा मधुसूदन दास। ठीक अच्छे 1911 मसीहा जनवरी मसरे गंजाम ओडिया समाज प्रतिनिधि दल मांद्राज सरकार को भेटिले आ ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी हस्तांतर करने को दाबी कले। मैंने बुझिपारे ना कौन है 1911 कौन है कि जनवरी मसरे गंजाम जो ओडिया लोक मैंने रोते से मांद्राज सरकार को भेटिले कहीं पूर्व मन पकातु गंजाम एवं कौन होता मांद्राज माने गंजामटा मांद्राज अंदर रही जाता तो मांद्राज जो ओडिया भाषाभाषी लोक मैंने से माने गंजाम रे माने मांद्राज रो गंजाम रे। ठीक अच्छे गंजाम से मांद्राज अंडर थिला तो से माने जाके मांद्राज सरकार को कौन कहले कि आमे चाहूँ ओडिशा रे मिसिया पाई। ठीक अच्छे तो बालेश्वर में उत्कल सम्मेलन माध्यम उत्कल स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ होता। मैंने देखते सबुआड़े एवं उत्कल प्रदेश केमती गढ़ा जीव स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गढ़ापी कि चललानी बालेश्वर भी होता। देखते एवं आसला आमर बिहार ओडिशा प्रदेश गठन और परवर्ती ओडिया आंदोलन माने बिहार ओडिशा प्रदेश गठन। देखते 1911 रे लॉर्ड हार्डिंज पूर्वांचल राज्य गुड़िकर सीमा परिवर्तन पर घोषणा कले। माने पूर्व जो राज्य थिला सब आम ओडिशा भी तो पूर्व रे जाउछि ना तो 1911 रे कौन है लॉर्ड हार्डिंज आसिले जी कौन कहले पूर्वांचल जो राज्य सब अच्छी तार सीमा परिवर्तन करा कोटा बढ़े दिया कोटा कमे दिया 1911 डिसेम्बर 27 रे कौन है इंग्रेज सरकार बंग प्रेसिडेंसी को कौन कले भाग भाग करदे। ठीक अच्छे तो 1911 लॉर्ड हार्डिंज कहले पूर्वांचल राज्य सब सीमा परिवर्तन हम से 1911 डिसेम्बर 27 रे कौन है इंग्रेज सरकार कौन कले बंग प्रेसिडेंसी को भाग करदे। 1912 रे तापर कौन है अगस्ट 1 रे गठित है ओडिशा बिहार बा बिहार ओडिशा नामक गोटे नुआ प्रदेश। बुझीपारे ना यह ओडिया माने ग्रहण करन कहीं ओडिया माने चाहते कि आम ओडिशा रे केवल ओडिया भाषाभाषी लोक रुहतु तो बिहार ओडिशा जो प्रदेश गठन है तो ओडिया माने यहाँ चाह नथिले। बुझीपारे कि नहीं बरं ओडिया विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने को तीव्रतर कर चाहते कौन ओडिया भाषाभाषी लोक मान सब एकत्रीकरण करी कौन करा जाऊ स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गोटे गढ़ा जाऊ।
एप्रिल 12 1912 एप्रिल 6 और 7 तारीख रे ब्रह्मपुर मन पकानी ऊपर पढ़ी के आसले आमे एटा केते नंबर जो थिला 1912 एप्रिल 6 7 रे अष्टम नंबर अधिवेशन जोटा ब्रह्मपुर रे हिथिला। हाँ बिहार ओडिशा प्रदेश रो गठन को मधुबाबू विरोध करथिले। से कोन कहिथिले ब्रिटिश शासन अधीन रे एपरि कोनोसी जाति नाही जे मानक प्रति ओडिसा रे लोक मानक थारु अधिक अन्याय और निर्दय व्यवहार प्रदर्शन करा जाछि जदियो से माने निर्दोष बुझिपारे ना। से कहले कि मधुबाबू कहले कि माने ब्रिटिश शासन अंडर जेते भी माने लोक रही सबुठू अधिका कष्ट पाई ओडिया भाषाभाषी लोक माने। इंग्लैंड संसदर केते सभ्य मधुसूदन को जोड़ एमती ना कि सबू माने ब्रिटिशर खराब थिले किछि भी भल थिले। से उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन कबे होता 1914 डिसेम्बर 26-27 रे पारला खेमुंडीर महाराज कृष्णचंद्र गजपति तार हेड थिले। तांको द्वारा आयोजित कौन थिला जयपुर राजा विक्रम देव वर्मा कहिथिले। कौन कहिथिले जयपुर राजा विक्रम देव वर्मा जो 10म नंबर उत्कल सम्मेलन अधिवेशन रे जदि मोर माने भाबंतु से कहया चाहछंती कि केमती केमती अलग अलग जगह जदि रहिबो कोन शासन हेइ पारिबो। सी कहिथिले जयपुर राजा विक्रम देव वर्मा कहिथिले 10म अधिवेशन रे उत्कल सम्मेलन कौन जदि मोर छिन्न मस्तक को रांची रे रखा जाए मोर दुई गोड़ को मांद्रा चिकित्सालय रे रखा जाए मो शरीर गंडी को बंगोपसागर रे फिंगी दिया जाए तेबे कौन मो बंचिछि बोली कहा जाय परिबो। आम उत्कल जननी विक्षिप्त अवस्था रे पड़ी रही तेणु उत्कल जननी विक्षिप्तांश गुड़ी को एकत्रीकरण करबा दरकार। माने बुझी पारछ ना से कौन कहय चाहे ओडिसा रे गोटे जगह एठी गोटे जगह सेठी सेमती कहले कौन हबो कि तो पूरा सबू को मिसेबा को पड़िबो बुझिपारे कि नहीं। अच्छा लॉर्ड कर्जन मध्य बिहार ओडिशा नूतन प्रदेश गठन संपर्क में इंग्रेज सरकार को निष्पत्ति को विरोध करथिले कहीं लॉर्ड कर्जन को तो ओडिशा बहुत पसंद हो जाइथिला ना जेतले बुल्ली से आसिले बुझिपारछ नहीं। तो देखंत 1912 फेब्रुआरी 1 तारीख रे इंग्लैंड लॉर्ड सभा रे भारतर पूर्वतन बड़लाट के लॉर्ड कर्जन बिहार ओडिशा प्रदेश को गठन को समालोचना करी कहले। से भी चाहू नथिला ना कि बिहार ओडिशा गढ़ू बोली। हाँ तो से लॉर्ड कर्जन से कौन कहते हैं लॉर्ड सभार यह एक गुरुतर त्रुटि जहाँ चिरस्थायी हो पार ना माने बेसी दिन रही ओडिया माने जदि एक आंदोलन प्रिय जाति होते जहाँ से नुहति से अल्प समय प्रतिवाद जन था माने बुझिपारे ना। से कौन कहले माने ओडिशा माने बहुत सहिला पोरे जाइकरी प्रतिवाद जन भारत सरकार को इंग्रेज सरकार को। तो लॉर्ड कर्जन सपोर्ट करके कहते ओडिया मानू आ भारत ना ओडिशा बिहार जो बनिला प्रदेश ता एगेंस्ट रे से कहउछन्ती आ सी भी चाहूले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केवल ओडिया मानन को नेकी बनू। ठीक अछि तापर हमें पढ़िबा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड खसड़ा विषय रे।